Hello students, welcome back to our channel. I'm back with another chapter of Hornbill book. We are not afraid to die if we can be all together. Written by Jordan Cook and Alan East. So, before we start the chapter, I would like to discuss about the topic of the lesson. The topic of this story is this is a family dialogue and it is said by a family. So that family goes to a voyage. एक शिप यात्रा पर फैमिली जाती है. वहाँ पर उन्हें बहुत सारी तूफान, बहुत सारे स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वे इस तूफान से, इस परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से किस तरह निकल पड़ते हैं, किस तरह उनको बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी वे हिम्मत रखते हैं. उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं फैमिली में और वे सभी एक ही बात कहते हैं कि अगर हम साथ में एकजुट हैं तो हमें, अगर हम मर भी गए तो हमें कोई दुख नहीं होगा. और वे किस तरह से बच निकलते हैं इस कठिन परिस्थिति से, यही सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे. सो वी विल रीड इट. I'll give you the meaning of difficult words and the expressions which is given in the lesson. So let's begin the chapter. So students, this is our story. We are not afraid to die if we can all be together, written by Jordan Cook and Alan East. In this story, we can find some expression words like honing or seafaring skills, ominous silence, mayday call, or pinprick in the West Ocean, tousled head. Like this kind of expression words will come. I'll explain you when these expressions will come in the line. So let's begin with this story. In July 1976, my wife married son Jonathan 6 and daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. So here, what does it mean by honing? Honing means improving. Honing means improving. And seafaring means traveling by sea. So here, in July 1976, that author himself and his wife, 37 years old author and his wife Mary and his 6 years old son and daughter Susan all together went to a sail from Plymouth. That is a voyage. शिप से जो यात्रा करते हैं उसके लिए वे लोग निकल पड़े. द डुप्लीकेट राउंड वर्ल्ड वोएज, जो ऑलरेडी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह से ये यात्रा की थी, ये वोएज किया था और उन्होंने कई सारी जगहों को डिस्कवर किया था, कई प्लेसेस डिस्कवर किए थे, कई सारी डिस्कवरीज की थी इस वोएज में. तो ये जो ऑथर है वो अपनी फैमिली के साथ इसी तरह से एक वोएज पे जाना चाहते थे और वे भी इसी तरह से कुछ डिस्कवर करना चाहते थे. तो इसीलिए वे इसको फॉलो कर रहे थे, सेम पाथवे वॉट एवर द कैप्टन जेम्स कुक हैड ऑलरेडी डन. और इसके लिए वे लगातार कई प्रयास कर रहे थे और बार बार वो अपने यहाँ पर ब्रिटिश वाटर मीन्स ग्रेट ब्रिटेन के आसपास जो एरिया है, जो वाटर स्पेस है, सीज है, उसमें बार बार ट्रैवल करते थे ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें. तो हमारे ऑथर बताते हैं कि वे 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन थे और वे कहते हैं कि उनकी वाइफ का एक कॉमन ड्रीम था, उनके वाइफ का, कि जो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने, वो जो एक फेमस एक्सप्लोरर थे, उन्होंने कई वॉयज किए थे, कई जगह ढूंढी थी, तो हम भी उनको फॉलो करें और अलग अलग जर्नी करें और सी में कई नई नई चीज़ें खोजें. तो वे बताते हैं कि 16 ईयर्स से वे जर्नी कर रहे थे और अलग अलग जगहों को वे ढूंढ रहे थे. 16 ईयर्स से जर्नी करते हुए अलग अलग जगहों को ढूंढ रहे थे और एक दिन वे भी कैप्टन कुक की तरह ट्रैवल करने के लिए, उनको कॉपी करने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे थे. So here we find some expression word like honing our seafaring skills. That means they would like to improve their traveling skills by voyage of sea with the Great Britain area or seas.
water. Okay. Now, our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent month fitting it out and testing it in roughest weather we could find. इसके लिए उन्होंने एक शीप तैयार किया था, वुडन हल्ट. वुडन हल्ट मीन्स शीप वुज आउटर बॉडी इज मेड अप ऑफ वुड. एक उन्होंने ऐसा शीप तैयार किया था जिसकी आउटर बॉडी जो है वो वुड से बनी हुई थी, और उसका जो आउटर एरिया था वो 23 मीटर लॉन्ग था, और ये 30 टन का इसका वेट था. तो ये प्रोफेशनली इसको इन्होंने खुद बिल्ड करवाया था, और इसको बनाने के लिए कई सारे महीने लग गए थे इसको कंप्लीट करने के लिए. और बार बार इसको कई रफेस्ट वेदर में भी इन्होंने ट्राई कर रखा था. जब भी कोई ख़राब मौसम होता था तो ये इसको ट्राई करते थे सीज वाटर में ले जा करके. तो ये इन्होंने खुद इस वॉयज के लिए एक शिप तैयार किया जो कि वुडन हल्ट से बना हुआ था. आउटर बॉडी उसकी वुडन की थी, और उसको कई सारे रफेस्ट वेदर में उन्होंने ट्राई किया था. द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. Now they begin their journey. तो आर्थर ने एक ड्रीम देखा था कि वे भी कभी कैप्टन कुक की तरह शिप पर जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक शिप बनाई थी. उसका नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर. Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो उन्होंने एक शिप बनवाई जिसका नाम था वेव वॉकर, और इसका डायमेंशन था 23 मीटर और 30 टन इसका वेट था. और इसका जो आउटर स्ट्रक्चर था, हल्ड मीन्स आउटर बॉडी ऑफ शिप. सो ये उसका वुड का बना हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत शिप इन्होंने बनाया था. प्रोफेशनली बनाया गया था. कई दिन लग गए थे इसको बनाने के लिए, कई महीनों लगे थे, और इसको कई बार उन्होंने रफेस्ट वेदर्स में भी टेस्ट कर रखा था. मतलब जब भी कभी तूफान आता था या स्टॉर्म होता था, उसमें वे शिप को ले जाते थे और उसको टेस्ट करते थे कि ये कितना सस्टेन करता है. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. लेग मीन्स इसका पार्ट. इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो सबसे पहले इन्होंने 3 साल पहले 105,000 किलोमीटर इसकी जर्नी भी बहुत अच्छे से कर चुके थे इसके साथ में. कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के कैप टाउन तक. अफ्रीका की जो कैप टाउन का जो समुद्र है वहाँ पर उन्होंने इसकी जर्नी कर रखी थी. उसमें इसको कई बार टेस्ट कर लिया था, और इसके बाद उन्होंने जो अमेरिकन जो 2 क्रूमैन भी हायर किए थे इसके लिए, अमेरिकन लेरी एजिल और स्विट्ज़रलैंड के हब सीगलर. ये दोनों हेल्प करते थे कि किस तरह से रफेस्ट वेदर में और कठिन से कठिन परिस्थिति में, और जो समुद्र बिल्कुल समझ से बाहर है, लाइक अफ्रीका के कैप टाउन का जो समुद्र है, तो वहाँ पर इसको सेल करने के लिए, सदर्न इंडियन ओशन में सेल करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन भी हायर कर रखे थे. Our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gale. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meter as high as our mainmast. Second day जो था हमारा कैप टाउन में, it began with encounter strong gales. Gales means strong wind. सो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, और
कुछ हफ्तों तक तो हम इसी तरह से सेल करते रहे स्ट्रॉन्ग विंड्स को क्रॉस करते हुए, और वो हमें डरा भी नहीं पाई। कुछ जैसे हमने समझ के रखा था कि ये तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन एक वेव ऐसी आई जिसने हमें बहुत बुरा डरा दिया। वो 15 मीटर हाई थी, हाई एज अवर मेन मास्ट। मास्ट क्या होता है? मास्ट इज द लास्ट कॉर्नर ऑफ हाइट ऑफ द शिप। शिप की जो हाइट का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है मास्ट। तो वो उस इतनी ऊंची थी वो, मतलब शिप के लास्ट ऊपर उसके पॉइंट वो वेव जा रही थी। 15 मीटर हाई वेव थी, तो उसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा डर लगा। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. अब 25 दिसंबर तक तो हम 3,500 किलोमीटर की यात्रा ईस्ट ऑफ केप टाउन में कर चुके थे, और बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर था। इसके बावजूद भी हम अपनी यात्रा करते जा रहे थे। बहुत आश्चर्यजनक तरीके से हमने अपना हॉलीडे भी मनाया, हमने अपना क्रिसमस भी मनाया, क्रिसमस ट्री भी सजाया, और हमने अपना त्यौहार मनाया। हमारा फेस्टिवल हमने कंप्लीट किया। न्यू ईयर के आने तक, मतलब 1 जनवरी तक हम सोच रहे थे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वेदर में। इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ, बट चेंज जरूर हुआ। और क्या चेंज हुआ वो? एंड वेदर बिकम वर्स, और ज़्यादा ख़राब हो गया। मौसम ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डाउन एंड जनवरी 2 द वेदर वर gigantic. We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knot. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of wind and spray was painful to the ears. So to slow the boat down, we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our raft drill, attached lifeline, donned oilskin and life jacket, and waited. जनवरी 2 तक जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। गिगेंटिक, बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी साइज में। हम सेलिंग करते जा रहे थे। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। जिप क्या होता है? जिप जो कपड़ा बंधा हुआ होता है। हाँ, आपने देखा होगा जहाज के स्ट्रक्चर में से ऊपर वेव्स को, हवाओं को रोकने के लिए कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसको कहते हैं जिप। तो उन्होंने एक छोटा सा जिप बांध कर रखा हुआ था, उसी से वेव्स को रोक रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, उसमें केवल 8 नॉट्स थी उस जिप में। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. और एक नहीं, कई सारी वेव्स इस तरह से हमारे तरफ आ रही थी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े समुद्र रोलिंग करते हुए हमारी तरफ आ रहे हों। इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा बड़े। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा था। वे शाउटिंग कर रही थी, स्क्रीमिंग कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in the loop across the stern. और हमने अपने जहाज की गति को कम करने के लिए उसमें क्या कर रखा था? एक मोटी रस्सी से, mooring मीन्स एक मोटी रस्सी को जिप के साथ बांधा, और उसमें लूप बनाकर, लूप क्या होता है? एक शेप होता है, जैसे उसमें बैंड कर देते हैं लूप, इस तरह से एक लूप बना करके, और उसको नीचे स्टर्न में गाड़ दिया था। स्टर्न जो नीचे की तरफ जहाज में डला हुआ होता है, उसको स्टेबल करने के लिए। तो उसमें एक मोटी सी रस्सी बांधकर जीप के साथ उसको हमने नीचे लटका दिया, ताकि वो उसमें गड़ जाए और हमारे जो शिप की जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। Then we double lashed everything, went through our life raft, drill, attached lifelines, donned oilskin and life jacket, and waited. और हमने जो भी हमारी लाइफ लाइन्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, उनमें सब में बहुत ऑयल
डबल लेयर करके उन जैकेट्स को पहना और सारी प्रिकॉशंस को लेना शुरू कर दिया, लाइफ लाइन प्रिकॉशंस को लेने शुरू कर दिया। ये जो स्टर्न है, स्टर्न मीन्स द बैक पार्ट ऑफ द शिप, जहाज के पिछले हिस्से में, जिससे कि उसकी गति कम होती है, वहाँ पर उन्होंने इसको रूप को, मोटी रस्सी को, मूरिंग को बैंड लूप करके उसके साथ बांध दिया ताकि उसकी गति कम हो, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देन the first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Impending मतलब कुछ होने ही वाला था। Impending जो कुछ होने वाला हो, क्या होने वाला था? Disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. जैसे हम कहते हैं कि तूफान के पहले वाली शांति होती है ना, उस तरह का ominous silence था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवा चलना एकदम बंद हो गई थी और स्काई बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। फिर अचानक से बहुत तेज गर्जना हुई और एक बड़ा सा बादल जैसे फट गया हो, इस तरह से। हवा चलना तो बंद हो गई, लेकिन बहुत डरावना, बहुत अनप्लेजेंट सा एक ट्रिमेंडस, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा एक बड़ा सा बादल, ट्रिमेंडस क्लाउड, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। बहुत ही बड़ा, कुछ जैसा फटाका फूटा हो, बम फूटा हो, इस तरह से एक्सप्लोजन हुआ, बस्ट हुआ और उसने हमारे डेक को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. काला और ग्रीन कलर का, वाइट और ग्रीन कलर का पानी हमारे पूरे शिप पर फैल गया। My head smashed into wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the wave. I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. एक बहुत बड़ा टोरेंट ग्रीन वाइट वाटर जैसे छपाक से आकर के हमारे शिप पर फैल गया और मेरा सर बहुत ज़ोर से व्हील से टकराया और मैं जाकर कहाँ फेंका गया? आई वॉज अवेयर टू फ्लाइंग ओवर बोर्ड। मैं इधर से उधर उड़ने लगा बोर्ड पर। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। पानी इतना सारा भर गया था डेक पर कि मैं उसके अंदर डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मुझे ऐसा लगा कि बस मैं अब मरने ही वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैं धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था और एकदम शांत महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड popped out of water a few meters away. Wave walker was near, capsizing her mast almost horizontal. Then a wave hauled her upright. My lifeline jerked out, and I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wavemaker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found wheel lined up the stern of next wave and hung on. Unexpectedly my head popped out of the water. मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा सर पानी से पता नहीं कैसे बाहर आ गया. A few meters away, wave walker was near capsizing. और मैं कुछ दूर पर जा कर के फेंका गया. Her mast almost horizontal, then a wave hauled her upright. My lifeline jerked out. जो जहाज था हमारा वो खड़ा हो गया. वेव मेकर उनका शिप जो है वो खड़ा हो गया, सीधा हॉरिजॉन्टल हो गया. देन वेव हॉल्ड हर अपराइट. और जो वेव्स थी, लहरें थी, वो उसको ऊपर की ओर उठा रही थी. माई लाइफ लाइन जर्क टॉट. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेवमेकर्स मैम्बून. और मैंने कस करके उसको पकड़ लिया था. बहुत तेज एक धक्का जैसा लगा. एक गर्ल हर्ल्ड मीन्स जो वेव्स है वो बहुत तेज धक्का मार रही थी, इधर से उधर उसको फेंक रही थी. तो जहाज क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल खड़ा हो गया था, अपराइट हो गया था. मैंने कस के अपनी लाइफ लाइन को जर्क कर लिया, पकड़ लिया
Grabbed the guard cells and sailed through the air into wave maker's main boom. Subsequent wave tossed me around द डेक लाइक अ रैग डॉल। जो बड़ी बड़ी वेव्स थी वो मुझे इस तरह से टॉस कर रही थी, इधर से उधर धक्का मार रही थी, फेंक रही थी जैसे कि एक गुड़िया हो। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल रफ हो गई थी, जैसे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। किसी रैग डॉल को इधर से उधर फेंकने पर उसके जो कपड़े फट जाते हैं, चिथड़े हो जाते हैं। इस तरह से मेरी हालत हो गई थी। डेक पर जो वेव्स थी, बड़ी बड़ी वेव्स मुझे इस तरह से टॉस कर रही थी इधर से उधर डेक पर, कि मेरी हालत उस गुड़िया जैसी हो गई थी। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, ब्रोकन टीथ। मेरी जो लेफ्ट साइड की रिब है वो क्रैक हो गई थी, मेरा मुंह खून से भर गया था और दांत सारे टूट गए थे। Somehow I found the wheel lined up the stern for next wave and hung on. किसी तरह मैंने व्हील को पकड़ लिया और लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली वेव आने तक मैंने उसे कस कर पकड़ रखा और हैंडल किया। वाटर वाटर एवरीवेयर, I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसा लग रहा था कि पूरा हमारा शिप है जो पानी में ही है, पानी के अंदर है। बट मैंने अपने व्हील को छोड़ा नहीं, किसी तरह भी स्टर्न व्हील को छोड़ा नहीं और उसको संभाल के रखा, टाइटली पकड़ के रखा। सो इन फ्रंट ऑफ हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। We were sinking, she screamed. The deck are smashed. We are full of water. अचानक से दरवाज़ा खुला और मैरी ऊपर आ गई, मैरी वाइफ ऑफ ऑथर। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो जोर से चिल्लाई। द डेक आर स्मैश्ड, वर फुल ऑफ वाटर। स्मैश्ड मीन्स चारों तरफ से भर जाना है और टूट जाना। स्मैश्ड मीन्स टूट जाना। हमारा जो डेक है वो टूट रहा था और पानी से भर गया था। टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने जोर से चिल्लाया, टेक द व्हील। मैंने उसको कहा कि व्हील को पकड़ो। I scrambled for the hatch, और मैं दौड़ा। I climbed claw one's way. Scrambled means मैं ऊपर की तरफ दौड़ा। For the hatch, Larry and Hab were pumping like madmen. Broken timber hung at crazy angle. The whole starboard side buckled inward. मैंने देखा बच्चों को जाकर के। देवर जहाज हमारा चारों तरफ से टूट गया था, उसका जो टिम्बर था, जो वुड था, वो फूल गया था और चारों तरफ से उसमें पानी अंदर आने लगा था। हमने पानी निकालने के लिए कुछ पंपिंग को स्टार्ट किया और पानी निकालना शुरू किया। हैंग एट क्रेजी एंगल्स, इसको बहुत तेजी से पकड़कर पंपिंग करने लगे। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड, और पूरा स्टारबोर्ड जो है वो फूल गया था। इट इज बगल्ड एंड स्लेज्ड, इज फ्लोटेड लाइक अ स्प्लैशिंग साउंड। बहुत तेज इसमें पानी बह रहा था। जो स्टारबोर्ड है, जो शिप का साइड का हिस्सा है, स्टारबोर्ड मीन्स शिप के जो बाजू का हिस्सा होता है, वो सारा क्या हो गया था, बगल्ड हो गया था, फूल गया था अंदर से और उसमें पानी भर रहा था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टीन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, और सारे हमारे कपड़े, हमारी क्रॉकरीज, सारे चार्ट्स और जितना भी सामान था वो सब पानी में डूब गया था। आई हाफ स्वैम, मैं तैर रहा था। हाफ क्राउल्ड इन टू चिल्ड्रंस कैबिन, किसी तरह रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस, जैसे ही मैंने उनसे पूछा तुम ठीक हो, उन्होंने कहा हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने जल्दी से कहा कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू। स्यू जो बेटी थी उसने कहा कि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, सर में थोड़ी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाव हर आइज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके सर में सूज गया था, बम्प निकल आया था, जैसे कहीं
ठुक जाते हैं या टकरा जाते हैं तो बम्प निकल आता है। सब बड़ा सा बम्प उसकी आईज के ऊपर सर पे बना हुआ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विथ द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन। मैं कुछ सामान, हैमर, स्क्रू, कैनवास लेकर के वापस से डेक पर चला गया फॉर स्टारबोर्ड साइड, जो शिप का बाजू का हिस्सा है उसको ठीक करने के लिए, जहाँ से वो फूल गया था और पानी अंदर आ रहा था, उसको बैस्ट करने के लिए, जो हार्ड करने के लिए वापस से कुछ इंतज़ाम करने लगा। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक अस ओवर अस। हर तरफ से पानी अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. किस तरह से मैंने जो कैनवास को स्ट्रेच किया और कुछ वाटरप्रूफ कवर्स, उसको गैप को भरने के लिए, वो जो गैप होल्स बन गए थे उसको गैप को भरने के लिए मैंने उसमें कुछ कैनवास को स्ट्रेच करके कीलें ठोकी। सम वाटर कंटिन्यू टू stream below, but most of it was now being deflected over the side. फिर भी कुछ पानी तो अंदर आ ही रहा था, पर ज़्यादातर डिफ्लेक्ट होकर जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो गई जब हमारी जो पंपिंग मशीन्स थी जिससे पानी बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो गए और उसमें कुछ डेब्रिस आ गया, कचरा आ गया, है ना, और उन्होंने पंपिंग करना बंद कर दिया। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली बैक ऑन डेक। आई फाउंड दैट ओवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड along with the forestay sail, the zeep, the dinghy and main anchor. So I found that कि पंप खराब हो गए थे और पानी पूरा तेज़ी से अंदर आने लगा था, और हमारे साथ में जो छोटी नाव हमने रख रखी थी वो भी, डिंगची बोलते हैं जिसको, वो भी ख़राब हो गई थी पूरी तरह से, और जो जिप का हिस्सा भी टूट गया था। जिप जो मैंने आपको बताया था, ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है वेव्स को रोकने के लिए, वो भी डैमेज हो गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर दी चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। फिर मुझे अचानक याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप अंदर पड़ा हुआ है चार्ट रूम फ्लोर पर, तो मैं वो लेकर आया, मैंने उसको कनेक्ट किया और फिर से पानी निकलना बाहर शुरू किया। एंड आई थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने बहुत गॉड को थैंक कहा कि वो वर्क कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी रात हम पंपिंग करते रहे, पानी निकालते रहे और कोशिश करते रहे कि रेडियो की जो कनेक्टिविटी हमें मिल जाए, हम किसी से सहायता मांग सकें। इसके लिए हम पूरी रात कोशिश कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू हर मेडवे कॉल विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो रेडियो कनेक्टिविटी है वो हमें मिल जाए, हम किसी से हेल्प मांग सकें। जब भी जैसे सिग्नल्स मिले हुए होते हैं, जब भी वॉयेज करते हैं तो रेडियो सिग्नल्स मिले हुए होते हैं, तो वी वर ट्राइंग टू मैच द रेडियो सिग्नल्स एंड द रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल यूज्ड फॉर आस्किंग हेल्प वर गेटिंग नो रिप्लाइज। हम लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई रेडियो सिग्नल हमें नहीं मिल रहा था हेल्प के लिए। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। Suze had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replies, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. देखिए बच्चे कितनी अच्छी बात करते हैं। स्यू का जो सर में जो सूजन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसकी दोनों आंखें बहुत बड़ी और काली हो गई थी, सूज गई थी। इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा बड़ी और काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑफ हर आर्म। उसने अपने हाथ में भी एक कट लगा हुआ था,
जख्म था वो बताया उसने। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये अपनी इंजरीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे। इस तरह से बच्चे ने कहा। तो ये बहुत ही बहादुरी की बात है कि बच्चे इतना पेशेंस रख के सोच रहे थे, देख रहे थे। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to make 2 hours rest in rotation, but we will still a tremendous leak wherever below the water line, and on checking I found that nearly all the boats 3 जनवरी तक हमने काफ़ी सारा पानी निकाल दिया था बाहर, और हमें इतना टाइम मिल गया था कि हम बारी बारी से सब लोग 2-2 घंटे रेस्ट कर सकते थे। और कहीं कहीं नीचे से कहीं लीकेज हो रहा था, मतलब अब आइट साइड से तो शिप को कवर कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से लीकेज हो रहा था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। जो उसकी मेन रिब थी, फ्रेमवर्क की मेन रिब, वो स्मैश्ड हो गई थी, टूट गई थी। स्मैश्ड मीन्स टूट जाना। और उसका in fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partition, और बस एक थोड़ी सी ही जगह बची थी, बाकी उसका जो फ्रेमवर्क था, जो वेसल्स थी, वो पूरी तरह से टूट गई थी। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was French scientific base. Our only hope was to reach this pinprick in the vast ocean. The great wave had put our auxiliary engine out of action. So 15 hours हो चुके थे इस तरह से तूफान से लड़ते हुए। हमें हमारा वेव वॉकर जो शीप था वो भी अब बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा था। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि अब किसी भी तरह से 100 किलोमीटर्स को क्रॉस करके एक छोटा सा आइलैंड है जो एम्स्टर्डम ऑस्ट्रेलिया में, किस तरह से था, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे कोई बहुत बड़ी स्पेस में एक सुई की नोक हो, ऐसा ही ये आइलैंड था। बट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद था, तो हम इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए किसी तरह प्रयास कर रहे थे। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm zip and headed for where I thought the 2 islands were. Mary round some corner beef and crackers biscuit, and we ate our first meal in almost 2 days. अब हमें कुछ उम्मीद जगी थी कि हम करीब करीब कुछ ही घंटों में आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। तो हमने राहत की सांस ली और हमने 2 दिनों में पहला अपना फीस्ट किया। कुछ जो हमारे पास कॉर्न्स और बिस्किट्स और बीफ था उससे हमने अपना खाना खाया। बट आवर respite was short-lived, and 4 p.m. black cloud began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. So, फिर से हमें कुछ समय के लिए रिलीफ मिला, लेकिन फिर से काले बादल छाने लगे और 4 बजे के करीब वापस तेज हवाएं चलने लगी, और जो हमने जिप पर नोट कर रखा था वो ढीला होने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू द नाइट, एंड बाय डाउन द January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। फिर से चिंताजनक स्थिति बनने लगी। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट, द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "We aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." Means उनके बेटे ने कहा उनसे कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं? तो मैं कुछ उससे कहता उसके पहले उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया कि अगर हम मर भी गए तो हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हम सब
एक साथ हैं। अगर मम्मी, स्यू, मैं और आप साथ में हैं तो हमें कोई डर नहीं। I could find no words with which to respond, but I left the children cabin determined to fight the sea with everything I had to protect the weekend starboard side. I decided to heave to, with the undamaged port hull facing oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. मैंने एक और कोशिश की बिकॉज आई वॉज डेस्परेट विद लिसनिंग माई सन्स डायलॉग एंड मैंने फिर एक कोशिश की, बच्चों के रूम को बाहर से बंद किया और जो पैराफिन बैरल्स पड़े हुए थे उन पैराफिन बैरल्स को एक मोटी रस्सी से बांधकर और उसको स्टारबोर्ड के साइड फेंक दिया. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken plank. We both felt the end was very near. हम दोनों को ही, मुझे और मेरी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि बस अब हमारा अंत नज़दीक है. But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speed. हमें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जनवरी 6 को कुछ स्थितियां सुधरने लगी और विंड का जो स्पीड था वो स्लो हो गया. Drift and current, in the effort of calculate our position, the best I could determine was that we are somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slit. She gave me a card she had made. फिर जब हम आगे बढ़ गए 150,000 किलोमीटर ओशन को हमने क्रॉस कर दिया, 65 किलोमीटर्स लंबे आइलैंड को हमने क्रॉस कर लिया. उसके बाद हमने देखा, मैंने ध्यान दिया कि मेरी बेटी बहुत दर्द से करा रही थी. वो मेरे पास आकर बैठ गई. उसकी दोनों आंखें सूज गई थी और एकदम काली हो गई थी. केवल एक पतला सा स्लिट दिखाई दे रहा था और उसने हमारे लिए एक कार्ड बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्राउन कैरिकेचर ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स. और उसने हम दोनों के सामने, कैरिकेचर मीन्स अ पिक्चर, उसने मेरा और मेरी वाइफ का एक पिक्चर बनाया था. कैरिकेचर मीन्स अ पिक्चर. तो उसने एक पिक्चर बनाया था जिसमें वो बता रही थी, हियर आर सम फनी पीपल्स, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. तो मैं वो पिक्चर देख के हंसने लगा. इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज भी था. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for best. Somehow we had to make it. एक छोटी सी बच्ची ने इतना सुंदर कार्ड बनाया और एक मैसेज दिया, मुझे बूस्ट किया कि वो हमें थैंक यू कर रही थी. देखिए, बच्चे कभी कभी बड़ों को किस तरह से बूस्ट करते हैं उनके काम को आगे बढ़ाने के. जब हम कभी निराश हो जाते हैं तो हमारे बच्चे हमें इस तरह से बूस्ट करते हैं. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास and was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for these and another estimate of the influence of westerly current which flow through this part of Indian Ocean. मैंने बार बार कैलकुलेशन को चेक किया और मैंने देखा कि हमारा जो मेन कंपास है, जो डायरेक्शन बताता है, वो ख़राब हो गया था और ठीक से चल नहीं रहा था. उसका मैग्नेटिक वेरिएशन ठीक से नहीं चल रहा था. आई मेड एन अलाउंस. अलाउंस मतलब मैंने एक मार्जिन निकाला. इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. इंडियन ओशन से होकर के किस तरह से ये डायरेक्शन जा रहा था, उसको फाइंड करने की कोशिश की. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री. मैं 2 बजे के करीब डेक पर गया ऊपर और मैंने लेरी को कहा, लेरी जो अमेरिकन क्रूमैन था, उसको कहा कि जो स्टीयर है उसको 185 डिग्री पे घुमा दो. वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स अ डिटर्मिनेशन. एक पक्के इरादे के साथ मैंने यह निश्चय किया कि अगर हम 185 डिग्री पे इसको क्रॉस करके स्टीयर को घुमा देते तो हम डेफिनेटली आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, climbed on my bunk and amazingly dozed off.
When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into westerly wind. At the moment, a tousled head appeared on my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. You was right behind him. पता नहीं कैसे बहुत भारी दिल लेकर मैं ऊपर चढ़ गया, बंक में अपने रूम में चला गया और एकदम जाते ही मुझे नींद लग गई। और फिर मैं शाम को 6 बजे उठा। जब तक बहुत डार्क हो चुका था, बाहर एकदम अंधेरा होने लग गया था और मुझे लगा कि अब तो हमने आइलैंड को मिस कर दिया। बट एकदम से मुझे पीछे से आवाज़ आई और मुझे किसी ने पैट किया। कैन आई हैव अ हग? क्या मुझे एक हग मिल सकता है? यहाँ मेरा बेटा जोनेथन मुझसे पूछ रहा था और सू मेरी बेटी उसके साइड में खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? मैं अभी आपको हक क्यों करूँ, मैं क्यों गले लगाऊँ अभी? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी, सेड यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाउंड द आइलैंड। मैंने डरते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे अभी डर लग रहा है, अभी हम आइलैंड पर नहीं पहुंचे हैं। देन स्यू ने कहा कि क्यों डरते हो? डरने की कोई बात नहीं, हम आइलैंड पर पहुंच गए हैं। वॉट? आई शाउटेड। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस एज बिग एज बेटल शीप। हम सब एक साथ जोर से चिल्लाए जैसे हमने कोई युद्ध जीत लिया हो, जैसे कोई बड़ी सी जीत कर ली हो हमने। आइलैंड हमारे सामने था। आई रश्ड ऑन डेक एंड गैस्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क outline of El Amsterdam. It was only a bleak peak of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. हमने देखा हमारे सामने एम्स्टर्डम आइलैंड था। मैंने उसे बहुत अच्छे से घूरा, देखा डेक पर चढ़ के और मैं दौड़ा उसकी तरफ। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। एक बड़ी सी चट्टान के जैसा था और कुछ थोड़ी सी वेजिटेशन थी, लेकिन ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore with land under my feet again. जैसे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन वापस आ गई हो। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरिन हर्बी, cheerful and optimistic under direst stress, and of Mary who stayed at the wheel of all those crucial hours. और मैं पूरे समय उन सब लोगों को थैंक कर रहा था। आई वॉज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट विद दिस। वी वर वेरी होपफुल दोज क्रूशियल आवर्स। मोस्ट ऑफ ऑल मैं मेरी को थैंक कर रहा था जो पूरे समय मेरे साथ खड़ी थी व्हील पर। I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. मैं उस छोटी 7 साल की बच्ची को थैंक कर रहा था जिसने बहुत पेशेंट रखा, अपनी इंजरी को बताया नहीं और किस तरह से उसने साहस रखा। और जब हम वापस आए तो उसकी जो इंजरी है 7 ऑपरेशंस के बाद उसकी उस इंजरी को ठीक किया जा सका। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, माय सन, जो मरने से नहीं डरा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप you understand the lesson. For many more videos, please subscribe my channel. You should go through the lesson once by your own. Thanks for watching.